Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the complex reactions or simultaneous reactions. यानी अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके थे वो एलिमेंट्री रिएक्शन थे, वन स्टेप रिएक्शंस, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर. Those were elementary reactions that takes place in one step. Simultaneous reaction or complex reaction कौन से हैं? Those are the reactions that take place in many steps. Sometimes there are some side reactions accompanying the main chemical reactions. Such reactions are known as complex reactions, as these reactions do not take place in single steps. Those reactions that take place in multiple steps, those reactions are called complex reactions or simultaneous reactions. In other words, such complex reaction proceeds in series of steps instead of a single step, and the rate of overall reaction is in accordance with the stoichiometric equation for that reactions. इसमें हमारे पास different types हैं. Generally, following types of simultaneous reactions occurs. First is reversible reactions या backward reactions, और opposing reaction भी इसको कहते हैं. Second is conjunctive reactions. Third is parallel reactions, and fourth one is surface catalyzed reactions. तो first हमने reversible reaction discuss करना है. Reversible reactions are opposing reactions. The reactions in which the products formed also react to give back the reactants are called as reversible or opposing reactions. In ऐसे reactions जिसमें से product बन जाते हैं लेकिन वो product फिर react करते हैं as a reactant, और product से दोबारा reactant बन जाते हैं, यानी forward और reverse direction दोनों directions में चलते हैं, ऐसे reactions those are called reversible or opposing reactions. Initially, the rate of forward reaction is very large. In the start, the rate of forward reaction is high because the concentration of reactant in the start is high. Therefore, or as we know that rate is proportional to concentration of the reactants, so therefore the rate of forward reaction is high. और रिवर्स रिएक्शन के लिए फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो चूंकि स्टार्ट में प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम है, so therefore initially the rate of backward reaction is slow. So initially the rate of forward reaction is very large, which decreases with the passage of time. और decrease क्यों? Because with the passage of time the concentration of the reactant decreases. So as the concentration of the reactant decreases, the rate of forward reaction decreases. On the other hand, the rate of backward or reverse reaction is zero or very small initially because there is no product. And with the passage of time, the concentration of the product increases, and this product acts as a reactant for the backward reactions. So as the concentration of the product increases, the rate of reaction also increases. So with the passage of time, the rate of reverse reaction increases with the passage of time. So initially the rate of forward reaction is very large, which decreases with the passage of time, and the rate of backward or reverse reaction is zero initially, which increases with the passage of time. तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जिस पर फॉरवर्ड रिएक्शंस का और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाएंगे, और वो स्टेज कहलाता है इक्विलिब्रियम. सो अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन टू रेट्स becomes equals, and the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reactions. अब कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो ज़रूरी नहीं है, यानी इक्विलिब्रियम पर हो सकता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो, और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और रिएक्टेंट की यानी प्रोडक्ट की कम हो और रिएक्टेंट की ज़्यादा हो. दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन रेट दोनों की बराबर होंगे. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम, सिंपली इक्विलिब्रियम. इट इज़ डायनामिक इन नेचर, स्टैटिक नहीं है, क्योंकि दोनों रिएक्शंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, तो कभी यानी रिएक्शन स्टैटिक कांस्टेंट नहीं है. So this is a dynamic. This type of reaction may be represented as ये है, A goes to B and B goes to A. So Kf is the rate constant for forward reactions and Kb is the rate constant for the reverse reactions. So initially the rate of forward reaction is high and rate of reverse reaction is low. With the passage of time, the rate of forward reactions यहाँ पर rate of forward reaction is high initially, so it decreases with the passage of time. And rate of backward reaction is low, zero in the start of the time, and it increases with the passage of time. इस टाइम के बाद the rates for both
forward and reverse reaction becomes equal. So this is the state of equilibrium, stage of equilibrium. This is called equilibrium state. अब यहाँ पर ये concentration शो कर रहे हैं. So concentration of A, that is the reactant, it is high in the start of the reactions, and concentration of P is low. So with the passage of time, the concentration decreases and concentration of the product increases. ये सिर्फ reversible के लिए नहीं है बल्कि all reactions के लिए है, क्योंकि हर कोई जो भी कोई chemical reaction हम ले लेते हैं, so हर reaction के लिए, for every reaction, the rate of the concentration of the reactant decreases and concentration of the product increases. For every reactions, whether it is simultaneous, reversible, consecutive, or so on. Similarly, ऐसा भी possible है. अब इस केस में concentration of the reactant कम है और concentration of the product ज़्यादा हो गई है. अब ऐसा भी हो सकता है कि equilibrium पर concentration of the reactant ज़्यादा हो और product की कम हो. ये possibilities भी है. दोनों chances हो सकते हैं. So there are different types of reversible reactions. 4 types. First order opposed by first order. It means that the forward reaction is also first order and reversible reaction is also first order. So one type is first order opposed by first order. Both the forward and reverse reaction are first order. Second type, first order opposed by second order, means the forward reaction is first order while the reversible reaction is second order. The third one, the second order opposed by first order, means the forward reaction is second order and the backward reaction is first order, and the second order opposed by second order. Both forward and reverse reactions are second order. तो इसमें हर एक के लिए अपना अपना रेट कांस्टेंट होगा, रेट लॉ होना है. तो पहले हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर. अब अगेन इसके भी 2 टाइप्स हैं. When the initial concentration of product is 0, स्टार्ट में प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन नहीं है. एक ये हो सकता है, और दूसरा कि पहले से भी प्रोडक्ट कुछ बना हुआ हो, यानी जब हम रिएक्शन ले लेते हैं तो उसमें पहले से प्रोडक्ट मौजूद होगा. सो द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉन ज़ीरो, नॉट ज़ीरो. तो ये 2 कंडीशन होंगे. अब इनमें भी दोनों के लिए रेट कांस्टेंट डिफरेंट होंगे. तो फर्स्ट वी टेक व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0. सो लेट टेक reactant A changes to B. K if is the rate constant for forward reaction, Kb is the rate constant for reverse reactions. So initially, when T is equal to 0, let the concentration of A is A naught, or small a, and B is 0. After time T, the concentration of A is A, or it is A minus X, and X of the product B are formed are B. इसको यहाँ से ले लेते हैं हम. इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0. पहले ये केस ले लेते हैं. अच्छा, ये एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर. कन्वर्जन ऑफ बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन. यानी साइक्लोहेक्सेन ये this exists in equilibrium. It exists as a mixture of chair form and board form. ये chair form है, ये board form है cyclohexane का. So they interconvert to one another, and there is an equilibrium between these 2 states, these 2 forms. And this is an example of first order opposed by first order. So let's consider these reactions A to B. K if is the rate constant for forward reactions, Kb is forward. Initially, when T is equal to 0, let concentration of A is A moles per liter, and concentration of product is 0. After some time T, X mole of the products are formed, and remaining concentration of reactant A will be A minus X. And at equilibrium, the concentration of the product is Xe, and remaining concentration of A will be A minus Xe. This figure represents these situations. And initial concentration A है, it decreases. So at any time T, its concentration is A minus X. And when it becomes constant, यानी equilibrium पर पहुंच जाए फिर उसमें there is no change, so then it will be A minus Xe. Similarly, concentration of the product B, initially it is 0, and it increases with time. So at different time, its concentration is X, and after equilibrium, then it is Xe. So rate of forward reactions, as we know, rate of reaction is proportional to concentration of the reactants. So forward के लिए reactant A है. So rate of forward reaction RF is proportional to concentration of A, and concentration of A is A minus X.
or RF is the rate of reactions is equal to Kf A minus X. So this is the rate for the forward reactions, where RF is the rate of reaction, Kf is the rate constant, and A minus X is the concentration of the reactants. Similarly for backward reaction के लिए reactant B हो जाएगा. So rate of reaction will be proportional to concentration of the reactant. अब इस केस में reactant B है, so therefore rate of forward reaction, that is RB, is proportional to concentration of the reactant B. यानी B इस reaction में product है, लेकिन backward reaction के लिए ये as a reactant काम करेगा. So rate is proportional to concentration of the B, and it is at different time interval. The concentration of B is X, so therefore rate is proportional to X, and rate is equal to Kbx, where Kb is the rate constant for reversible reactions. So at equilibrium, net rate क्या हो जाएगा? Net rate of the reactions, that is dx by dt, is equal to rate of forward reaction minus rate of reverse reactions, that is Rf minus Rb. So net rate is dx by dt is equal to Kf. Rf क्या है? Kf A minus X, और minus, और Rb क्या है? Kbx. यहाँ पर पहले हमने डिस्कस कर लिया है. Forward reactions, ये for reverse reactions. So difference of these two is the net rate of the reactions. So this is the differential rate expression for reversible reactions of the type first order opposed by first order, and when the initial concentration of the product is 0. अब हमने इस रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है, Kf और Kb को हमने फाइंड आउट करना है. यानी काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, ये हमने रेट फाइंड आउट करने होते हैं और रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं. तो अब इसमें हमारे पास दो रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और रिवर्स रेट कांस्टेंट है. इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर एट इक्विलिब्रियम. एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस. पहले एक फिगर में हमने डिस्कस किया था. So at equilibrium both the rates becomes equal. So net rate क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे. जब दोनों बराबर हो जाएगा तो फॉर एग्जांपल ये है 1 है और ये भी 1 हो जाए तो 1 minus 1 0 हो जाएगा. जब दोनों बराबर है तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा. So therefore net rate of the reaction will be equal to 0. So rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reactions. So rate of forward reaction at equilibrium it will be Kf, यानी हमारे पास तो forward reaction है, ये इक्वेशन है RF KF A minus X. इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा RF is equal to KF A minus XE, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज XE. तो अब इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू KF A minus XE, और KB क्या, बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? KB इंटू XE. अब इससे हम KB या KF की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में लगा लेते हैं. तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो जैसे यहाँ पर पहले किया है, KB फाइंड आउट किया है ना, ये KB एक तरफ और XE को दूसरी तरफ ले आते हैं. तो क्या हो जाएगा? KF A minus XE डिवाइडेड बाई XE. दिस इज इक्वल टू KB. सो पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1. ये इक्वेशन नंबर 1 है, यानी नेट रेट रिएक्शन है. नेट रेट रिएक्शन इस KB की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इससे हम दोनों KF हो जाएंगे, तो एक हम मालूम कर सकेंगे. सो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें KB की वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो KF A minus X माइनस, और KB की जगह पर KF A minus XE, ये वाले KF A minus XE और XE और X. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल अलजेब्रिक. तो क्या कैसे कर लेते हैं? पहले तो इसमें KF कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी KF है और इसमें भी, तो KF कॉमन ले लिया है, और बाकी ये A minus X और माइनस A minus XE और XE और X, इसमें से X इन दो टर्म्स का एलसीएम लेते हैं. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? XE. तो XE इज इक्वल टू A minus XE से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप पहले से पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा. तो ये XE एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस KF A minus E, तो एस सच आ जाएगा ना. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो A XE माइनस X और XE और माइनस A और X, ये माइनस AX माइनस इंटू माइनस प्लस, और X XE और A, नहीं X और XE, A तो मल्टीप्लाई X और XE. अब इसमें से ये माइनस X और XE और प्लस X और XE ये कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा? AXE माइनस AX डिवाइडेड बाई XE इंटू KF. KF AXE और A माइनस
ए एक्स डिवाइड बाई एक्स ई। अब इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो जब ए कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा के एफ ए और एक्स ई और एक्स ई माइनस एक्स। अब इसमें के एफ कॉन्स्टेंट है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये भी कांस्टेंट है, और एक्स ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बाद तो देयर इज नो मोर चेंज इन कंसंट्रेशन, सो देयरफॉर दिस एक्स ई इज आल्सो कांस्टेंट। और एक ये कंसंट्रेशन है एक्स और दूसरी तरफ टी है, तो ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन है, पहले वाला भी था और ये भी है ना, जिसमें सिर्फ एक रेट, उस केस में हमारे पास दोनों थे, के एफ भी था और के बी भी था। तो अब हमने के बी को के एफ से रिप्लेस कर दिया है, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के लिए जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो x के साथ ये x कंबाइन कर लेते हैं, यानी डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स ई एक तरफ और ये डी टी दूसरी तरफ ले आते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। सो जिस तरह डी एक्स ए माइनस एक्स का फर्स्ट ऑर्डर में हम इंटीग्रेट कर रहे थे, दैट वाज इक्वल टू log ऑफ minus log of a minus x, so exactly in this case this इसका इंटीग्रेट होगा minus log of x e minus x, और ये सारा ये कांस्टेंट के इफ ए टी और प्लस जेड, जेड इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस जेड को फाइंड आउट करने के लिए व्हेन टी इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये x खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये t जब 0 कर लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा, सो z विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स ई। अब ये z इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, then we get minus log of x e x k f a x e, और इस z की जगह पर ये वैल्यू माइनस log of x e। इस माइनस log of x e को दूसरी तरफ ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, log of x e प्लस log of x e माइनस log of x e माइनस x। अब इस पर फिर वो log of a माइनस log of b वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, सो वी गेट log of x e ओवर x e माइनस x, जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर में था log of a और a माइनस x इज इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इफ़ यू प्लॉट दिस कंसंट्रेशन एक्स ई डिवाइड बाई एक्स ई माइनस एक्स, इसका लॉग और दूसरी तरफ टाइम, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ प्लॉट एट एक्स एक्सिस टी, एट वाई एक्सिस लॉग ऑफ एक्स ई और एक्स ई माइनस एक्स, सो इट गिव्स स्ट्रेट लाइन। और इसका स्लोप विल बी इक्वल टू के एफ ए ओवर एक्स ई, ये स्लोप है के एफ ए ओवर एक्स ई। तो इस स्लोप से हम के एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कि स्लोप के एफ इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स ई, यानी एक्स ई इधर आ जाएगा, सो स्लोप इंटू एक्स ई डिवाइड बाई ए। सो स्लोप की वैल्यू हम ग्राफ से ले लेंगे, और एक्स ई कंसनट्रेशन है, कांस्टेंट है, वो हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से इक्विलिब्रियम पर डिटरमिन कर सकते हैं, और ए इनिशियल कंसनट्रेशन है वो भी कांस्टेंट है। तो क्योंकि ये दो कांस्टेंट है और स्लोप की वैल्यू ग्राफ से, तो वी कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शंस। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के लिए भी के बी को भी फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, के बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम पर एज वी नो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सो आर एफ ए ये। तो अब इसमें से के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। के ये पहले किया था, के एफ इज इक्वल टू के बी, यानी पहले हमने के बी किया था, यहाँ पर इसे के बी किया था ना, अब इससे के एफ कर लेते हैं, तो के एफ क्या हो जाएगा, ये के बी एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई हो जाएगा ना। कौन सा है ये, हाँ, सो के एफ विल बी इक्वल टू के बी एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सा है, ये वाला है ना। इस के एफ की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास के बी की वैल्यू फिर आ जाएगी। जब ये के एफ की वैल्यू ये है, तो और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इस इक्वेशन के एफ की जगह पर के बी एक्स ई, ये के बी एक्स ई डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई, और इसके साथ पहले से एक्स ई है तो ये एक्स ई है, और पहले से ए बी है तो ये ए है, और इज इक्वल टू टी। अब इसमें एक्स ई और एक्स ई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के बी और ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स ई। तो अब अगेन दिस ए इज कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और एक्स ई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये भी कांस्टेंट है, और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्लॉट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा, प्लॉट बन जाता है। तो इसमें से स्लोप इज इक्वल टू के बी ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। तो के बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप, यानी ये स्लोप है,
इसको इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस एक्स ई और डिवाइड बाई ए। तो इससे के बी की फाइंड आउट, यानी के ए किया था, के ए है के एफ स्लोप इंटू एक्स ई डिवाइड बाई ए, स्लोप इंटू एक्स ई डिवाइड बाई ए इज के एफ, और स्लोप इंटू ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए, यानी इसका अपोजिट है ना ये, अच्छा डिफरेंट है, स्लोप इंटू एक्स ई डिवाइडेड बाई ए, और ये है स्लोप इंटू ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू के बी। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिटरमिन हो गया और रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन भी डिटरमिन हो गया। अब इन दोनों का सम, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रेट कांस्टेंट के सी। द सम ऑफ द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द कंपोजिट रेट कांस्टेंट, यानी के एफ प्लस के बी इज इक्वल टू के सी, कंपोजिट रेट कांस्टेंट। अब इस कंपोजिट रेट कांस्टेंट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कैसे कि फिर वही इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन ले लेते हैं, आर एफ इज इक्वल टू आर बी। सो ये इक्विलिब्रियम पर के एफ यानी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। अब इस के एफ को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई और के बी और एक्स ई। तो इस एक्स ई टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो के एफ ए इज इक्वल टू, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा दूसरी साइड पर, के एफ एक्स ई प्लस के बी एक्स ई। इनमें से एक्स ई कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स ई कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, के एफ प्लस के बी। तो ये सम ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट रेट कांस्टेंट के सी। सो के सी विल बी इक्वल टू के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स ई। तो ये वही सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में ये हमारे पास स्लोप था ना, के एफ ए डिवाइड बाई एक्स ई। यहाँ पर स्टार्ट में जो हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये वाले देखें, इसमें के एफ ए ओवर एक्स ई, तो ये यही चीज़ है ना, के एफ ए ओवर एक्स ई इज कंपोजिट। तो इसका मतलब ये स्लोप जो है इस इक्वेशन में, ये स्लोप, हाँ फर्स्ट वन में, दिस स्लोप दिस इज इक्वल टू कंपोजिट रेट कांस्टेंट। अब अगर कंपोजिट रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स ई और डिवाइड बाई ए, तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। और कंपोजिट रेट कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ ए माइनस एक्स ई डिवाइड बाई ए से, तो वो हो जाएगा के बी। सो ये के एफ ए ओवर एक्स ई, दिस इज स्लोप एंड दिस इज कंपोजिट रेट कांस्टेंट। इसी तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हम, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट, सो देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यही फिर इक्विलिब्रियम पर लेते हैं, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस एंड के एफ, ये रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। अब इस के एफ के बी को इस तरफ ले आते हैं, तो के एफ डिवाइड बाई के बी इज इक्वल टू एक्स ई डिवाइड बाई ए माइनस एक्स ई। सो रेशो ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी के एफ माइनस के बी इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। So K equilibrium is equal to XE minus A minus XE. XE minus A minus XE. अगर फर्दर रीअरेंज कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, K equilibrium A माइनस K equilibrium XE और XE, फिर इस XE को दूसरी तरफ ले आते हैं, XE और XE दोनों टर्म सेम है, तो इसमें से XE कॉमन ले लिया है और K equilibrium प्लस 1। तो और ये XE ए को इधर लेते हैं के इक्विलिब्रियम, और ये के इक्विलिब्रियम प्लस 1 इसको इस तरह लेते हैं, सो वी गेट दिस। सो एक्स ई ओवर ए इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस। सो इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज, इट मीन्स के इज वेरी लार्ज, सो के प्लस 1 विल बी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, यानी एक 1 को इग्नोर कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, दिस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1। So very large K equilibrium indicates that Kf is much larger than Kb, and the rate constant for forward reaction is much greater than rate constant for reversible reactions. In other words, the reaction is irreversible. अगर opposite condition है, यानी K equilibrium is much smaller than 1, तो फिर इसमें ये डिनोमिनेटर ये इग्नोर करेंगे, तो फिर XE over A will be equal to K equilibrium. So it means इसका मतलब ये होगा कि rate of forward reaction is smaller and rate of forward reaction is comparatively larger. So this is all about the reversible reaction when the initial concentration of the product is 0 and both those are
फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। ये एक एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल ये 2HI गिव्स H2NI2। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर सेकंड जब प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो हो वो फिर कल डिस्कस करेंगे, कल नहीं बल्कि मंडे को डिस्कस करेंगे। टाइम कितना हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज सिंपली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज द रेशो ऑफ द available concentration to the initial concentrations. A ratio of the concentration, available concentration to initial concentration is called fractional extent. यानी कितना रिएक्शन हुआ है। अब अगर ये जितना कम होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ज़्यादा हो गया है। अगर ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, फ्रैक्शनल एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब होगा कि रिएक्शंस कम हुआ है।